Okay, let us start. Good morning, everyone. Yeah. So, last time we have started with logarithmic differentiation, right? And how many questions we have done from that exercise? Okay. Question number one we have completed. I had given you few questions for homework also. I hope, right? Yeah. This is the exercise. You all have done that. Okay. So now we will start with question number two onwards. Actually, in question number two also, there are few sums which you can manage. But then I thought, okay, we will start from the next class only. So for example, all of you can start the first question first. Yes? Write down the question and think how can we differentiate this with respect to x. Come on. 1.3 question number 2 ka first. Yes. Let me know how many of you have got the answer for this question. Yes. Okay. Let me try this now. Students, can you please tell me first? There are four terms like separated by plus. So if I differentiate, differentiation will go to all the terms individually, right? Now, out of these four terms, uh, can we find out derivative of almost all the terms? Yes. Is there any problem in finding the derivative of any of the terms? Priya saying no. What about other students?
So as I can see here, some are saying x raised to x is a problem, some are saying e raised to e is a problem. Okay. Huh? So I think at this point, after doing two exercises, writing two tests on differentiation, this question, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, but still, let's see. So if I differentiate this, this will be dy by dx. The derivative will be separated to every term. So it is derivative of x raised to e plus derivative of x raised to x, derivative of e raised to x plus derivative of e raised to e. Now, if I look at the first term, derivative of x raised to e, this looks like x raised to n. E is a number, right? So we have to treat it as x raised to n. So it will be e into x raised to e minus 1, n into x raised to n minus 1. Definitely the second term is derivative of a function raised to function, which we cannot solve without taking log. So we'll have to take it separately and solve. So we'll keep it as it is. Okay. Later on, we will consider u as that function, and then we will solve. Third function, e raised to x. So we know that the derivative of e raised to x is e raised to x plus, as many raised the doubts about e raised to e. Yes, e raised to e is a constant, na? There is no x. Number raised to number, 5 raised to 5, 2 raised to 2, उसके जैसा ही है ये. Then there should not be any confusion about e raised to e. The derivative should be 0. Correct? Now one more step I'll solve. So it will be finally e into e raised to x raised to e minus 1 plus derivative of x raised to x plus e raised to x. This is my dy by dx. Call this as number 1. Okay, and now to solve this, I will take, let u is equal to x raised to x function. Then I will take log on both sides. So I'll get log u is equal to x log x, right? And then we differentiate with respect to x. So we all know log u का derivative first तो होगा 1 upon u, then into du by dx. राइट साइड में u भी लगेगा तो x कॉमन होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, something like this. Again we will solve. So it will be 1 upon u du by dx. X cancel, so it's 1 plus log x. U can be transferred at that side. So du by dx is equal to u is nothing but x raised to x into 1 plus log x. This is number 2. And now this is what the derivative of that term x raised to x. So we will just say put two in one. Okay, so therefore dy by dx will become e x raised to e minus 1, बीच में उसका डेरिवेटिव था तो x raised to x into 1 plus log x plus e raised to x. So this will be your final answer. Have you all understood how we have done this problem? Yes, everyone?
चलो कम ऑन, कंप्लीट इट फास्ट. Let me know if you want me to scroll it down. ये यू वाला पार्ट तो अभी कॉमन हो चुका है, हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको यूज किया था. प्लीज लेट मी नो इफ इट इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स. Is it completed, student? You all are taking more than expected time. Okay. Now try to solve along with me because they are not now different questions. Okay. So write down the second question now along with me. Yeah. Please write down this question. Okay. So as you can see here in this question, it's a x raised to x raised to x. So function raised to function raised to function. And here also it is a raised to x raised to x. So in both of these cases, I cannot find out the derivative individually, isn't it, Shruti? Can we find out derivative individually? क्या ना तो हम पहले का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, राइट, और ना ही दूसरे का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो इस केस में हमको दोनों टर्म को अलग अलग लेना पड़ेगा
उसको u और v एज्यूम करके फिर उसके अंदर log लेके उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, राइट? और इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो let us start with this. Let u is equal to x raised to x, right? First step, taking log on both sides. Now when we take log on both sides, it will become log u, and this will become, ये पूरा x raised to x जो है वो नीचे आ जाएगा पावर, and now I'll be left with only log x. Is this step is clear to everyone? Okay. Now student, if you just observe this, then normally what we do, after taking log, we used to differentiate it, right? But don't you think if I differentiate still on right hand side, we have a term function raised to function whose differentiation is not possible directly, isn't it? इसमें u will भी लगाओगे तो x raised to x को कॉमन लोगे, log x का डेरिवेटिव वो तो हो जाएगा. बट फिर जब log x को कॉमन लेके x raised to x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे लिखोगे? उसको वापस से सॉल्व करना पड़ जाएगा ना. So since still the function contains a function raised to function term, what can I do is I can take log one more time. Yes, so I'm saying taking log again on both sides. So it's like already log u था, so वो हो जाएगा log of log u. Understand this? Now here if I apply log, so it is like log of m into n. तो log m plus log n सेपरेट होगा. तो जब मैं पहले का log लूंगा, so it will become x log x plus multiplication का plus होता है, and the second term will be log of log x. Yes, all of you please understand the steps up to this and write down. And please ask if you have any doubt, मैंने कैसे किया, क्यों किया. Let me know. Have you all understood? Okay, so I think now it's very clear till this much, and now I can see the terms. I can directly differentiate all of them. ज़्यादा से ज़्यादा चेन रूल है, ब्लॉक के अंदर एक फंक्शन है, so that's completely fine. हम तो वो करते आए. So now I'll do differentiating with respect to x. ध्यान से देखना, पहले होगा log of something का डेरिवेटिव, log of something. So log of something का डेरिवेटिव 1 upon something, 1 upon log u. फिर होगा into डेरिवेटिव ऑफ log u. तो डेरिवेटिव ऑफ log u होता है 1 upon u. into फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ u, वो होगा du by dx. Please let me know if you have understood. Come on, say reply yes or no. Left hand side, chain rule. Very good. Now on right hand side there are two terms, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है. तो प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट हो गया, तो पहले इसका डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव में क्या लगेगा, u भी लगेगा, राइट. तो देखो इसके डेरिवेटिव को u भी से करेंगे, x कॉमन,
log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हुआ, प्लस अब सेकेंड टर्म का, इसमें कोई u भी नहीं है, ये तो चेन रूल है, तो पहले log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन log x इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव, अब वो तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। यस, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते, थोड़ा एक दो स्टेप। यहाँ पर क्या होगा, तो ये 1 1 या 1 u log u हो जाएगा, तो 1 अपॉन u log u du by dx equals to x cancel, so 1 plus log x plus 1 upon x log x, u log u को उस साइड भेज दिया, du by dx is equal to u log u रहेगा, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x, ठीक है। बट अब u और log u के जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो u तो क्वेश्चन ही था, x रेस टू x, log u यहाँ पर है, दिख रहा है, सेकेंड स्टेप जब पहली बार हमने log लिया था, तो बस ये सारी चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो u इज x रेस टू x, log u इज x रेस टू x, और क्या था, 1 प्लस log x रेस टू x log x, ये हमने केवल u log u लिखा, इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x. Have you all understood how we did the entire problem? We don't need to solve further, इधर ही हम स्टॉप कर देंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव, इजंट इट? Yes. So now similarly we will solve the second part. तो second part क्या है, e raised to x. So I will now assume let v is equal to e raised to x, right? ये थोड़ा इजी है, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या बच्चों, सोचो जरा, कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे कि सर हाँ, अगर मैं इसको ऐसा ट्रीट करूँ कि ये ई रेस टू समथिंग है, तो डेफिनेटली आई कैन डू। सो देखो मैं करने जा रहा हूँ अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा dv बाई डी एक्स, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग, तो वो एज इट इज हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, इजंट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, अब वापस से इसके अंदर x रेस टू x आ गया, तो अब इसको निकालने के लिए तो हमको वापस log लेना पड़ेगा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग सा वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज w एज्यूम किया, उसको x रेस टू x किया, फिर टेकिंग log किया, तो ये मिलेगा dw बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी log ले रहे ना पहले, तो डेरिवेटिव कहाँ से आ गया, यहाँ हो जाएगा log w is equal to x log x, and now we differentiate,
with respect to x. So we get 1 upon w dw by dx. Same x common, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, log x कॉमन, x का डेरिवेटिव 1. अब तो आप लोग को x रेस टू x का डेरिवेटिव बाय हेड हो गया रहेगा, isn't it? dw by dx क्या होगा? w means x रेस टू x, और ये हो जाएगा 1 plus log x. So x रेस टू x 1 plus log x is a derivative. ये किसका डेरिवेटिव है? w का. w मतलब x रेस टू x का, उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया. So dv by dx क्या हो जाएगा? So therefore dv by dx is equal to e रेस टू x पहले से था, इसका डेरिवेटिव आया x रेस टू x 1 plus log x. दिस आई एम कॉलिंग एज नंबर 2. सबको सेकेंड वाले का डेरिवेटिव समझा कैसे किया हमने? यस, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स में थिंक कि सर इसको अगर मैंने गलती से लॉग लेके ही कर दिया रहता तो, सो डेफिनेटली देर इज नो प्रॉब्लम इवन इफ यू गो विथ लॉग. आप क्या किए रहते उस टाइम? यू वुड हैव टेकन log on both sides first step. तो क्या होता है ये? log v इक्वल टू x रेस टू x log e हो गया रहता, राइट? फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि x रेस टू x अभी भी है, तो तुमने वापस से एक बार log लिया रहता. तो टेकिंग log अगेन, तो यू विल गेट log ऑफ log v इक्वल टू, इधर क्या होता है? पहले टर्म में होगा x log x प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो, और ये हो जाएगा log ऑफ log e. yes, and now if you differentiate this, so differentiating with respect to x, log of log v, तो पहले log of something का डेरिवेटिव दैट इज log v 1 upon log v, फिर log v का डेरिवेटिव 1 upon v, और फिर v का डेरिवेटिव dv by dx. x log x में u v लगेगा, x कॉमन log x का डेरिवेटिव 1 upon x, log x कॉमन x का डेरिवेटिव 1. कैन एनीवन टेल मी सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? तो उसमें भी log ऑफ समथिंग लगा सकते हैं ना, राइट? बट क्यों लगाएंगे? वो तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई x है ही नहीं ना. हाँ, अगर आप करोगे तो 1 अपॉन लॉग ही करोगे, फिर अंदर लॉग ही करोगे, हाँ, तो वो रॉन्ग है. डायरेक्ट ये कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो फाइनली क्या आएगा? dv by dx, ये v log v उधर चला जाएगा, v log v, और इधर क्या बचेगा? x x कैंसिल, 1 प्लस log x बचेगा. और अभी सब्स्टिट्यूट करो तो हमको v मालूम है कि v है e रेस टू x, और log v अपने को मालूम है x रेस टू x, राइट? देखो log v क्या था? x रेस टू x log e था ना, राइट? हाँ, log e, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस log x. आप बोलते रहो कि सर हमको, आपने जो लेफ्ट में किया है उसमें log ही नहीं है एग्जैक्ट, बाकी तो सब सेम है, इधर log ही एक्स्ट्रा आ गया. एक्चुअली log ही हम पहले ही निकाल सकते थे. क्यों? क्योंकि log e लिखा तो उसका बेस क्या है? e है ना, इट इज एज्यूम्ड, तो वो तो 1 ही हो गया ना. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ, तुम थोड़ा और भी इजी कर सकते थे इसको, ऊपर ही अगर हमने log e को 1 लिख दिया रहता, तो यहाँ पर ही जब हमने log e को 1 लिख देते तो ये x रेस टू x ही बचता, isn't it? तो किसी भी मेथड से करो सेम है. दोनों मेथड समझ में आ गए अच्छे से? तो फर्स्ट वाला ज़्यादा इजी है, सेकेंड वाला भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, तो प्लीज़ सॉल्व कर लो दोनों मेथड से.
ये वाले में लॉगी को 1 लिख देना, दैट इज मोर इजियर। तो ये सारे टर्म्स आएंगे ही नहीं ना। ठीक है, चलो कंप्लीट करो। ओके, last step of the first part. Last step what I did is, ये डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव है ना, और डब्ल्यू मतलब एक्स रेस टू एक्स, तो इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो इसके पहले वाला मैंने u और log u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। u is this and log u is this। तो सी ऊपर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये क्लियर, देखो ये u है और ये log u है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट। सेकेंड वाले को log e को 1 करके करता हूँ मैं, मतलब मैंने इसको ही अगर सॉल्व किया रहता थोड़ा तो ये एक्स रेस टू एक्स ही होता ना। फिर जब मैं लॉग लेता तो ये टर्म का क्वेश्चन ही नहीं होता, जस्ट एक्स लॉग एक्स होता, तो ये भी नहीं रहता, राइट। एंड रेस्ट ऑल इट सेम, तो ये लॉग ई का टर्म नहीं होता था, क्योंकि उसमें फिर हम
एक्स रेस टू एक्स ही है ना, 1 log e तो है ही नहीं. You will get the same thing. This is number 2. I hope everyone would have done this. This is still not the final answer because ये तो हमने separate find किया ना दोनों को. ठीक है, हमको तो y का डेरिवेटिव निकालना था, हमने u का डेरिवेटिव निकाला और v का डेरिवेटिव निकाला. तो अब हमको ये सब कुछ बैक सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो ये और मेथड है बच्चों, दोनों में से कोई एक मेथड करना. सो देयरफॉर अभी जो मेरा y है वो एक्चुअली क्या बन गया, u प्लस v बन गया, इजंट इट? क्योंकि पहले को u लिया है, दूसरे को v लिया है हमने. एंड नाउ I differentiate with respect to x. So I will get dy by dx equal to u का डेरिवेटिव du by dx प्लस v का डेरिवेटिव dv by dx. और बस हमको क्या करना है, जो भी हमने du by dx और dv by dx निकाला है उसको सब्स्टिट्यूट करना है. ये मेरा dv by dx है और ये ऊपर वाला जो ये बड़ा वाला है वो du by dx है. तो लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट देम. ये हो जाएगा x रेज टू x रेज टू x इंटू एक्स रेज टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर था 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x log x. यस, ये हो गया अपना du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स जस्ट ना हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर e रेज टू एक्स वाला. e रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस log x. So this completes your answer. So it's easy but थोड़ा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है. Right? Everyone understood? Sir, in u log is missing. Where log is missing? X raised to x अच्छा log x भी था क्या? हाँ log x भी करेक्ट. X raised to x log x. Okay. Yes. Fine. So I hope you all have understood and you would have completed this. So let us go ahead with the next question. That is third one. So now after this question, you all can manage many of the problems of this time. Have you all completed that or still you are doing it? Come on. Yeah, please reply. Okay, completed. So let us take the next question now. Now this next question you can only solve. Let y is equal to, question is log x, क्योंकि हमने तो रेस कर लिया, ये सब तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, माइनस cos x raised to cot x, right? Now the y function contains two terms and both are of type function raised to function, right? So all of you start same way. और इसमें तो दो बार log भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन तो है नहीं, एक बार में ही हो जाएगा. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर लिखते हैं टेकिंग लॉग. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्यों नहीं ले सकते टेकिंग लॉग? कैन एनीवन आंसर मी?
Why can't we take log here itself? Why I'm taking separately and then taking log? Tell me fast. Power? No, nothing related to power. To avoid mistakes? Not at all. Not at all. Any other reason why I'm not taking log right here? I'm taking it separately. It will become u by v. No, wrong. थोड़ा आप नज़दीक पहुँचे हो बट स्टिल रॉन्ग है बिकॉज वी विल हैव then dy by dx for both the terms at the end. हाँ तो अच्छी बात है ना. अगर टेकिंग लॉग यहाँ लेने से हमको dy by dx डायरेक्टली मिल रहा है एट द एंड बोथ द टर्म्स का तो अच्छी बात है. हमको तो वही फाइंड करना है ना क्योंकि y तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स है. दोनों मिल रहा है तो इट्स गुड. आदिल शाह व्हाट नो फॉर्मूला. थोड़ा इलेबोरेट करो उसको. Other students also replied. Very good. Please look at the reply by Adil. What is he saying? Sir, if you take log on both sides in the first step itself, so this is like a term, this is like another term, or बीच में minus है, so it is like log of a minus b, या log of a plus b. Students, can we separate log of a minus b like this? Log a minus log b. Can we do like this? Yes? Or one of students said divide. Can we even write like this? This is also wrong, na? Because log a by b is log a minus log b. When we have both terms with log and minus in between, then we write log a by b. Log of a minus b or log of a plus b cannot be solved like this. So it is because of the multiplication plus or minus sign, we are not taking log on both sides because the log will not separate. It will not go to both the terms. Is it clear, everyone? It's not just for ease of doing it, we are taking u and v, not at all. नहीं तो देखो ना, हमने देखो x रेस टू x इंटू लॉग एक्स था तो उधर हम लेते थे लॉग क्योंकि इंटू में लॉग प्रॉब्लम नहीं है ना. लॉग हम लेंगे a इंटू बी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉग a प्लस लॉग बी हो जाएगा, वो तो इजी हो गया. बट ओवर प्लस और माइनस साइन वी कैन नॉट टेक लॉग. अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया आपको. बहुत सारे लोग नहीं तो ऐसे ही करते रहते और मिसकंसेप्शन में कि इसलिए हम नहीं करते. ओके, सो आई थिंक लेट अस स्टार्ट. आई विल नॉट डू इट दिस क्वेश्चन. यू ऑल ट्राई. लॉग एक्स रेज टू एक्स किया मैंने. अभी आप आगे का कंटिन्यू करो. एक लॉग करो फिर डिफ्रेंशिएट करो, आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड में भी वी ले लो उसको. फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग एंड देन डिफ्रेंशिएट. स्टार्ट डूइंग इट. आई ट्राई आफ्टर 2 minutes.
ओके, आई होप आपका यू तो हो गया रहेगा सॉल्व करके. सो लेट मी ट्राई. So taking log on both sides, first step, we will get log u equal to. Now this power will come down. यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं और वो फिर लिख देते log x. अरे x नीचे आएगा फिर इसका log होगा ना. So it becomes log of log x. Please mind this. जब हम log लेते हैं a to the power b का तो b इधर आता है फिर log a तो रहेगा ना. तो log of log x तो रहेगा ना. आपने ओनली log x लिख दिया तो रॉन्ग हो गया. एंड नाउ आई कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So this becomes 1 by u du by dx. x कॉमन. नाउ log of log x का डेरिवेटिव. सो पहले तो बाहर वाले log का डेरिवेटिव होगा तो log of समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन लॉग एक्स फिर log x का 1 अपॉन एक्स प्लस. नाउ log ऑफ log x कॉमन तो x का डेरिवेटिव 1. मैंने u भी लगाया बच्चों, u और v. ठीक है. सो यहाँ पर वी कैन सी दैट x एंड x इज गेटिंग कैंसल इन द फर्स्ट टर्म. u को उधर भेज दिया तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x इंटू 1 मतलब log ऑफ log x. ऐसा हो गया ये. ठीक है. अभी बस u के जगह u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस करेक्ट आंसर ऑफ du by dx? So I will call this as number 1. Okay, good. Similarly, you solve the second part now. Come on, complete this. Let v equal to cos x raised to cot x. उसको सॉल्व करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी. कम ऑन फास्ट. Okay, so let me do the next problem now. And in the next part of this problem, cos raised to cot. So let v is equal to cos x raised to cot x. आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस. आप जस्ट ऑब्जर्व करो और आपके जो सोल्यूशन से कंपेयर करो हाउ आई एम डूइंग इट.
Yes, I was mute because I told you all that I will not explain this. You have to just hmm, match with your answer. So still you all are reminding me, sir, I am mute. Sir, you are mute. Purposely I was mute. Because I asked you all to do this. Sir. I don't have to give any explanation for this question. Everyone got the same answer? Definitely not everyone, those who have solved. Let me give you quick explanation for this. टेकिंग लॉग लेंगे राइट साइड में क्या होगा लेफ्ट में तो लॉग भी होगा राइट में कॉट विल कम डाउन सो इट विल बी लॉग कॉस एक्स नाउ डेरिवेटिव log v 1 by v dv by dx here u into v this is u this is v cot x common u common इसका डेरिवेटिव पहले log of something का डेरिवेटिव 1 upon something can you see that log of something 1 upon something into डेरिवेटिव of something cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log cos x का डेरिवेटिव आई रिपीट log of something 1 upon something into डेरिवेटिव of cos माइनस sin x फिर log x कॉमन लिया तो cot x का डेरिवेटिव विच बिकम्स माइनस cos x का x ना cot दिख रहा है इधर sin cos दिख रहा है आई थिंक cot को cos by sin लिखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा cot को लिखा cos अपॉन sin बाकी सबको एज इट इज माइनस sin अपॉन cos माइनस को आगे लिख दिया तो प्लस माइनस माइनस cos x स्क्वायर log cos x cos cos कैंसिल sin कैंसिल इधर माइनस वन बचा इधर एज इट इज v को इधर लाया v को सब्स्टिट्यूट किया गॉट द आंसर क्लियर एवरीवन so this is first and second and now we will substitute in y so therefore हमारा y क्या है ओरिजिनली फर्स्ट फंक्शन minus second function right so now if you differentiate this with respect to x you will get dy by dx equal to du by dx माइनस डी वी बाई डी एक्स अब आपको जो आंसर आया है डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का फ्रॉम 1 and 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो हाँ सेकेंड ये जो डी वी बाई डी में माइनस कॉमन ले सकते थे क्योंकि दोनों माइनस है तो बाहर माइनस आता लेकिन ठीक है तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला माइनस प्लस हो जाता तो वो यहाँ पर कर लेना एज यू विश आप वैसे भी रखते हो तो कोई मिस्टेक नहीं है वो ठीक है तो फाइनल स्टेप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट क्या आया था log x raised to x okay so it will be log x raised to x in the bracket 1 upon log x plus log of log x this is du by dx minus ये जो डी वी बाई डी एक्स अभी हमने निकाला cos x raised to cot x inside that it is minus 1 minus cos x square x into log of cos x यही है ना हाँ तो बस दिस इज योर फाइनल आंसर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला ना ये माइनस कॉमन लेके इधर प्लस कर सकते थे दैट्स ऑल वी कैन डू हियर इन दिस क्वेश्चन एवरीवन गॉट द आंसर okay so let us go to the textbook now so I think now many of the questions you can take it as a homework students right so let me just give you hint and then you can take it as a homework see the fourth one first term x e raised to x
डेफिनेटली फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो इसको अलग से u लेंगे, इसको अलग से v लेंगे, एक बार के डेरिवेटिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब पहली बार इसका डेरिवेटिव लोगे ई रेस टू एक्स नीचे आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। तो अब ई रेस टू एक्स का तो डेरिवेटिव आता है ना, वो क्या होता था जब x रेस टू एक्स होता था तो नीचे x रेस टू एक्स आता था। तब x रेस टू एक्स का तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता, इसके लिए हम टेकिंग वापस लॉग लेते थे, राइट। यहाँ तो ई रेस टू एक्स का आ जाएगा, और ये तो ऐसे भी सिंपल है, साइन एक्स नीचे लॉग ऑफ लॉग एक्स। सो दिस इज मैनेजेबल आई थिंक, राइट। फोर्थ वन। फिफ्थ देखो, u और v। अभी कभी कभी क्या होगा, किसी एक u का ना डायरेक्ट डेरिवेटिव आता रहेगा, v में लॉग लेना रहेगा, बट फिर भी मेक अ हैबिट कि उसको भी u लेके सॉल्व कर लो। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अभी फिफ्थ में कुछ लॉग लेने की जरूरत है क्या फर्स्ट टर्म में? क्या लगता है आपको? वो तो डायरेक्ट है ना डेरिवेटिव, तो चेन रूल है, ई रेस टू समथिंग, तो ई रेस टू टैन एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू टैन एक्स, और फिर इनटू टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, उधर भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि अभी यू वी लेके कर रहे हैं ना, तो हम वैसा ही कर दे, लेट यू लिखेंगे ये, और फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट लॉग। हाँ, इसमें लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यस और नो, तो इसको भी लेना पड़ेगा। 6 में तो दोनों टर्म में लेना पड़ेगा। 7 में इसको u लो, इसको v लो, इसको w लो, तीनों को सॉल्व करो टेकिंग लॉग करके, जितनी बार लॉग रहेगा वो तुम देख लेना, ठीक है। एंड देन तीनों को फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड फिर फाइनली हमको आंसर मिलेगा। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मैनेज करने हैं, हो जाएंगे। चलो, वेरी गुड। ओनली टू, आई डेंट गेट यू। ओनली टू मीन्स which question you're talking about only second? सब क्वेश्चन सेकेंड वन। हाँ, सेकेंड वन का ये सारे क्वेश्चन होमवर्क है। अभी हम लोग एट प्रॉब्लम करेंगे, एट प्रॉब्लम। चलो, ऑल ऑफ यू स्टार्ट विथ एट प्रॉब्लम। ये x इक्वल टू पाई बाई फोर को बाद में याद करेंगे हम लोग। ये क्या है, सब फाइनल आंसर आ जाएगा ना डी वाई बाई डी एक्स का, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे, राइट। x इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हमको मिल जाएगा डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई। so all of you start this y equal to tan raised to tan raised to tan, come on। So this is 8-1 now. Okay. Now in this question you can see um, they have given tan x, then raised to tan x, and again they have a bracket and raised to tan x. So students, don't you think that this looks like a law of indices, a raised to m raised to n? And if it is a raised to m raised to n, then can we do like this? A raised to m into n, m into n. Yes. अभी तक जो भी पावर टू पावर फंक्शन आते थे ऐसे ब्रैकेट्स नहीं लिखते थे, इसके लिए वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दोज पावर्स, बट यहाँ पर पर्पसली पावर के ऊपर पावर, फिर उसका ब्रैकेट लगा के पावर लगाया, राइट। सो पावर पावर कैन बी मल्टीप्लाई। ओके, तो ये नॉर्मल मतलब 3 स्टेप का था, रेस टू था, अभी वो रेस टू हो गया, राइट। सो नाउ वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग log on both sides, you will get log u here, ये पूरा tan स्क्वायर x पावर नीचे आ जाएगा,
और इनटू बचेगा log of tan x. And I think now we can easily differentiate this, isn't it? Sorry, log u नहीं, log y है ना यहाँ पर. हाँ. So now if I differentiate this with respect to x, I will get 1 upon y dy by dx इक्वल टू, इसमें u ही लगेगा, ये u है और ये v है, तो tan स्क्वायर x कॉमन, v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले log का डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव log ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग इनटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये हुआ फर्स्ट वाले, u डेरिवेटिव ऑफ v. अभी v कॉमन ले लेते हैं, log tan x कॉमन, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव, हाँ अभी आपको आना चाहिए, आपका पूरा चेन रूल रिवाइज होगा. tan स्क्वायर x मतलब पहले x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, tan रेस टू 2 है ना वो, तो वो होगा 2 इंटू टैन रेस टू 2 माइनस 1 इंटू अंदर का डेरिवेटिव दैट इज tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x. सबको ये देखो, चेन रूल नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके लिए नहीं है फिर, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ नहीं होने वाला फिर आपका. हाँ, एक tan x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आई विल गेट सिंगल tan x इंटू sec square x, राइट, दैट इज द फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ पर क्या क्या बचेगा, तो 2 tan x sec square x एंड log tan x, 2 tan x sec square x log of tan x. This is 1 upon y dy by dx. अब हम y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, लेट्स सी. Therefore dy by dx is equal to y. What is y? Question. Tan x raised to tan x raised to tan x. Inside this bracket के अंदर tan x into sec square x plus 2 tan x sec square x into log of tan x. ये हो गया आपका कंप्लीट dy by dx का आंसर. बट हमको फाइंड करना है dy by dx एट पाई बाई 4. सो देयरफॉर अब हम लिखेंगे देयरफॉर dy by dx at, this is the way we write, at x equal to pi by 4 is equal to, everywhere x की जगह pi by 4 पुट कर दो. तो डायरेक्टली भी हम मतलब पुट करके फिर वैल्यू निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो. अभी tan 45 1 रेज टू tan 45 1 रेज टू tan 45 1. ओके, हियर tan 45 1 sec 45, तो cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, तो sec 45 रूट 2 होगा, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 45 1 sec 45 रूट 2 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ tan 45 1. 1 रेस टू 1 रेस टू 1 तो 1 ही होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. रूट 2 का स्क्वायर 2 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ पर log 1 आ गया. हमने log में प्रॉपर्टी पढ़ा था, log of 1 to the base any number is always 0. Because this is 0, the entire term will become 0. So 2 plus 0 is 2, 2 1s are 2. So your final answer will be a number 2. Understood everyone? चलो कंप्लीट इट फास्ट. ऐसे तो सॉल्व कर लिया रहेगा आप लोगों ने, बट फिर भी जल्दी से सॉल्व करो इसको.
Let me know if it is completed. Okay. चलो कंप्लीट हो गया, जल्दी करो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 3. Yes. Now look at the textbook, students. Question number 3 now. Now, don't you think question number 3 is of which type of function? I had explained you when I was about to start this exercise. एक तो logarithmic differentiation किया था और दूसरा क्या learn करने वाले थे? Derivative of implicit functions. You remember implicit? So till now, all these questions were explicit. Explicit means y is in terms of x only, right? मैं हर फंक्शन को y लिखता था और y के अंदर कभी भी जो भी होता था या तो वो x होता था या तो वो कांस्टेंट होता था. But now if you look at all the questions of 3, there is no y equal to something like this. Yes, and even if you try to write y equal to something, you will get a function in terms of x and y both, isn't it, student? Come on, reply fast. So these all questions are of implicit type of questions. Okay. There is no extra formula, no extra concept for this. Whatever we know till now, we are going to use the same thing. Then sir, how we will do? Because till now हमारे पास y equal to होता तो हम differentiate करते थे तो हमको dy by dx मिल जाता था. अभी तो इसमें y कहीं भी है, बीच में हमें दो बार है y, तो कैसे मैनेज करेंगे? I'll just do few problems and then the rest questions you'll have to manage. So let's start with the first question itself. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. So we are now in question number 3. First one, we have to find dy by dx and it is given root x plus root y equal to root a. See, in implicit function, wherever is y, don't worry at all. Go for differentiation directly. क्योंकि सारे टर्म का डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना, रूट वाले तो है सब. अब डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ध्यान देखो ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1/2 रूट एक्स. ठीक है. अब रूट वाई को हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि रूट ऑफ समथिंग है. ठीक है. तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट समथिंग का होगा 1/2 रूट समथिंग, मतलब 2 रूट वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई, दैट इज dy by dx. सबको समझा ये वाला स्टेप? लेफ्ट वाला स्टेप समझ में आया? जल्दी बोलो यस नो. इक्वल टू रूट ए का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? रूट ए का डेरिवेटिव करेक्ट 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट. 1/2 रूट ए नहीं. अब बस आपको क्या करना है, अब जहां भी dy by dx है उसको एज ए इक्वेशन के जैसे हम उसको उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. हाँ, कैसे? उसको वहीं पर रखो, इस वाले टर्म को इधर भेजो,
नॉर्मल, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे x फाइंड करते थे, तो उसी तरीके से। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को यहीं पर रखा, ये पूरा 1/2√x उधर गया तो -1/2√x हो जाएगा। बाद में 2√y यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो अपने को मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एज इट इज 2√y/2√x, 2 कैंसिल, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -√y/√x, उसको कंबाइन करके √y/x भी लिख सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट? लेट मी नो इफ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। अभी सपोज यहाँ तो एक ही बार dy बाई डी एक्स मिला, सपोज 3-4 टर्म आया और 3-4 टर्म में 2 टर्म dy बाई डी एक्स है, कोई बात नहीं, जिसमें dy बाई डी एक्स है उसको उधर ही रखो, बाकी सबको भेज दो। बाद में जो 2 टर्म में dy बाई डी एक्स है उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद जो उसके साथ एक्स्ट्रा टर्म बचा उसको भी राइट में भेज दो और फिर उसको सॉल्व करो, तो फिर जो आंसर आएगा वो dy बाई डी एक्स होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो कोई एक्स्ट्रा नया कंसेप्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला नहीं, सेम थिंग, जस्ट हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। लेट मी डू एक आध और प्रॉब्लम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला। जैसे एक 6 प्रॉब्लम है, x e रेज टू y, y e रेज टू x। x e रेज टू y, y e रेज टू x इक्वल टू 1। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u भी लगेगा, पहले टर्म में भी u भी, दूसरे टर्म में भी u भी। पहले का टर्म का देखो, हाँ ध्यान से, x कॉमन, e रेज टू y का डेरिवेटिव e रेज टू y, बट देन dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि वो e रेज टू x नहीं है ना, e रेज टू समथिंग है, समझो पहला ये टर्म, प्लस e रेज टू y कॉमन, x का डेरिवेटिव 1, ये पहले का डेरिवेटिव हुआ। एवरीवन इज क्लियर विद दिस फर्स्ट x e रेज टू y का डेरिवेटिव, x कॉमन, e रेज टू y के डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स आ ही जाएगा ना क्योंकि y है वहां पर। गुड, प्लस सेकेंड टर्म y कॉमन, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, u भी लगा रहा हूं वापस से, प्लस e रेज टू x कॉमन, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। बस हो गया। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म के अंदर dy बाई डी एक्स है, लास्ट टर्म के अंदर dy बाई डी एक्स है, इन दोनों को इधर रख के dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो और बाकी दोनों को उधर भेज दो। तो देखो क्या होगा, इन दोनों में से अगर मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो x e रेज टू वाई प्लस e रेज टू एक्स dy बाई डी एक्स मिलेगा, यस और नो, इक्वल टू, इन सबको उधर भेजा तो e रेज टू वाई इंटू 1 e रेज टू वाई, तो माइनस e रेज टू वाई हो गया, y e रेज टू एक्स उधर आएगा, माइनस वाई ई रेज टू एक्स हो जाएगा, और बाद में इस पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो dy बाई डी एक्स हो सकता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ई रेज टू वाई प्लस वाई ई रेज टू एक्स, ये नीचे आके डिवाइड करेगा तो सेम ही आएगा। बस मैं थोड़ा ये पहले लिख रहा हूँ, ये बाद में, क्योंकि यहाँ पर उसी तरीके से लिखा है ना, तो जस्ट टर्म्स को अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो बस यही आंसर है आपका, हो गया, डन, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? तो ये सारे टाइप जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से है। हाँ, e रेज टू वाई, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, एक मिनट देखो, e रेज टू वाई, हाँ ये यहाँ पर e रेज टू वाई है,
ओके, चलो। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3 के, कैन यू मैनेज बाय योर सेल्फ? कम ऑन, आप ट्राई करना, फिर जो भी नहीं आएंगे वी विल डिस्कस इन द क्लास. ओके, so question number 2 remaining questions and question number 3 remaining questions you have to solve. Okay students. If you have not written this, time is up, so you can take a screenshot of this at least, so that while solving it will help you. Take a screenshot. First question. Okay, now the second question, sixth question. Okay, fine, then that's all for today. See you all in the next class. Take care. Bye bye.